سوال یہ ہے کہ اوہد میں عمر کے بھاگنے کی سپیڈ کیا تھی؟ جزاک اللہ. عمر نے خود نے کہا نا اس کے جواب میں، عمر نے خود، میں اس طرح بھاگ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. اس کا خود اپنے اسپیڈ کو بتایا. یہ صحیح سند کے ساتھ تفسیر طبری میں موجود ہے. الكريم الجزء الثاني سورہ آل عمران آیت نمبر 155 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، جن لوگوں نے بھاگے تھے، انہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف، یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں. انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا ان کو گرایا. تو عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا، اس نے عمر نے خود اپنے زبان سے کہا میں فرار تو میں نے فرار کیا، میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ رہے تھے. یہ کتاب ہے میرے پاس، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیخ ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی، 693 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. شیعہ عالم ہے، شیعہ عالم. ان کے جلد اول ہے الجزء الاول. یہاں سے میں کچھ مقام پڑھتا ہوں. قلم ان کا ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے. قلم ان کا ہے، شان فاروق اعظم کی ہے. قلم ان کا ہے، شان حضور کے صحابہ کی ہے. جب مقام بدر والے میں نے پچھلے جمعے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ بدریوں سے اللہ راضی ہو گیا، وہی حدیث ادھر ہے. انہو من اہل البدر ولعل اللہ اطلع علیہم فغفر لہم. اللہ نے بدریوں پہ توجہ فرمائی اور سارے بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ان پہ جنت واجب فرما دیا. یہ صفحہ 190. اب آئیے ایک اور خاص مقام کی طرف. اب یہ مقام ہے غزوہ احد کا. غزوہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں ذرا دھچکا لگ گیا تھا. وہ 50 تیر انداز وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے، ان میں سے 40 اور باقی شہید ہو گئے، تو پاسا پلٹ گیا تھا. اور یہ بک بک کرتے ہیں ٹی ویوں میں، جی ابو بکر بھی بھاگ گیا، عمر بھی بھاگ گیا، ایک اکیلے مولا علی شیر خدا رہ گئے. یہ کتاب تمہاری ہے، حوالہ سنیے لکھا کیا ہے. اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کون کون تھے. انہ لما فر الناس یوم احد، احد کے دن جب لوگ فرار ہو گئے، ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبرا واحدا، حضور ایک گٹھ بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، ایک گٹھ بھی نہ ہلے. یرمی مرتن عن قوسہ و مرتن بالحجارہ، حضور کبھی تیر پھینک رہے تھے اور کبھی پتھر اٹھا کے پھینک رہے تھے. رسول اللہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. وصبر معہ، اور آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے. اربعۃ عشر رجلا، 14 مرد. کتنے مرد؟ 14 مرد رسول اللہ کے ساتھ ٹھہرے رہے. سبعۃ من المہاجرین و سبعۃ من الانصار، جس میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے. ابو بکر، پہلا نا ہی ابو بکر دا ہے. کون ٹھہرے رہے؟ ابو بکر و عبد الرحمن بن نوف و علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و طلحہ بن عبید اللہ و ابو عبیدہ بن الجراح. ابو عبیدہ بن العامر بن جراح نہیں، ابو عبیدہ بن الجراح و زبیر بن العوام، یہ مہاجرین تھے. ومن الانصار الحباب بن منذر و ابو دجانہ و عاصم بن ثابت و حارث بن سما و سہل بن حنیف و اسید بن حضیر و سعد بن معاذ. یہ ٹھہرے. آگے چلیے اگلا صفحہ، یہ صفحہ 168. خارج عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے، یہ کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہوئے نا تو مقام بدر میں لڑائی کے موقع کی بات داستان سنائی کہ ابا جان وہ بدر والا واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، تو آپ میری تلوار کے نیچے 17 بار آئے، پر میں نکل گیا کہ میرا باپ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑا، تو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا، بیٹا سمجھ کے نہیں، رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. اب احد میں بھی عبد الرحمن ادھر تھے کافروں کی طرف. خارج عبد الرحمن بن ابی بکر علی فرس، عبد الرحمن بن ابی بکر گھوڑے پہ نکلے کافروں کی طرف سے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا من یبارزو انا عبد الرحمن بن نقیب، ہے کوئی مد مقابلہ آنے والا، میں ابو بکر کا بیٹا عتیق کا بیٹا عبد الرحمن ہوں. کن کو للکارا؟ مسلمانوں کو. قلم اس کا ہے، کم از کم اپنوں کی یار مان لینی چاہیے، آپ اتنی ضد بھی تو نہ کریں، اب ضدی قوم بڑے ہیں یار. فنہدا ابو بکر وشعر سیفا، رسول اللہ کے لشکر سے ابو بکر نکلے، تلوار بار نکالی اور کہا یا رسول اللہ ابارزو، مجھے اجازت ہے اپنے بیٹے کی گردن مار کے آتا ہوں. یار ابھی بھی یہ گستاخ ہے، ابھی بھی کافر ہے، پھر تم نے ایمان دیکھا ہی نہیں ہے. اور کسی نے کہا تھا اگر روئے زمین میں ابو بکر صدیق نہیں ہے نا پھر روئے زمین میں کوئی صدیق نہیں ہے. فقال رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا شم سیفک وارجع الی مکانک متانا بنفسک، ابو بکر تلوار اندر کر، تو میرے قریب رہ، تیری قربت سے رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے. یہ الفاظ ہے.
तेरी कुर्बत से रसूलुल्लाह का कलेजा ठंडा रहे। आज भी करीब है कि नहीं? मैदान माशर में भी करीब है। फरमाया मैं अबू बकर उमर क़यामत के दिन ऐसे ही उठाए जाएगा। तो इसी तरह जिहाद फर्ज है। जिहाद की फर्जियत का मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन ये फर्ज होता कब है, ये दूसरा सवाल है। ये फर्ज कब होता है? तो ये बात याद रखें कि जिस मुल्क के अंदर कुफार चढ़ दौड़े, उस इलाके के, उस मुल्क के तमाम मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। वहां के रहने वालों पर जिहाद फर्ज हो जाता है। और जिहाद का ये मतलब है कि सारे असला पकड़ लें, फिर हम इमाम की इत्तिबा करेंगे। इस इमाम से मुराद है अपना वजीर आजम सदर। इमामत कुबरा पर जो फायज हो चुका है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका हुक्म फिर मानना हमारे ऊपर लाजिम होगा। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद करो अगरचे तुम्हारा इमाम यानी इमाम अकबर सदर बादशाह फांसी की क्यों ना हो, तुम इसकी इत्तिबा करोगे, तुम उसके पीछे चलोगे। अगर वहां से ऑर्डर आ जाए कि सारे माल पेश करें, माल की कमी हो गई है, तो फिर हमारे लिए फर्ज हो जाता है कि हम अपना अपना माल राह खुदा में खर्च करें और जमा करें। अगर वो ब्लड के लिए कहें कि हमारे यहाँ मरीज काफी हो चुके हैं, अपना ब्लड दो, तो फिर हर एक दौड़े अपना अपना ब्लड पेश करे, ये जिहाद में हिस्सा डाले। अगर वहां से ऑर्डर आ जाए कि नौजवानों को भर्ती किया जाए, फिर हर घर से नौजवान निकले। तो जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा उस ऑर्डर को हम फॉलो करते रहेंगे। हर एक का काम नहीं होता सरहदों पे जाना या टैंक चलाना या अपना जहाजों को निशाना बनाना, वो आर्मी का काम है। हाँ, जब वो खुला कह देंगे कि आओ नौजवानों हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं और तुम ऐसा करो, तो फिर नौजवानों पे फर्ज हो जाता है। बात समझ आ रही है? वहां के मुल्क के रहने वाले मुसलमानों पर जिहाद कब फर्ज होता है? जब बाहर से काफिर हमला कर दे। जिस तरह इंडिया ने जो है वो 7, 8, 9, 10 मई को पाकिस्तान पे हमला किया, तो इन 4-5 वक्तों पे दिनों में अंदर पूरे पाकिस्तान के ऊपर जिहाद क्या हो गया था? फर्ज हो गया था। उस वक्त हम फिर सारे इख्तलाफात भूल जाएंगे, अपोजिशन के, सियासी वगैरह सब, फिर हम एक हैं, हम वतनी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। उस वक्त कोई काफिर है तो वो भी पाकिस्तानी है, मुस्लिम है तो वो भी पाकिस्तान। और फिर इन दिनों में जिन्होंने गद्दारियां की, कौम फौज के अड्डे बताए या निशाने, फिर वो पकड़े भी गए बाद में। तो अच्छा, ये हो गया फर्ज उस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों के ऊपर। वाजिब किन पर है, फर्ज कफाया किन पर है? उसके इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम कंट्रीज लगती हैं, मुस्लिम आबादियां हैं, मुस्लिम ममालिक है, उनके ऊपर क्या हो जाता है? जिहाद फर्ज किफाया हो जाता है। यानी ऐसे वो माली इमदाद भेजें, अफरादी इमदाद भेजें, ताकि वहां के मुसलमानों को फतह हो, वो शिकस्त ना खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत उन-निसा आयत नंबर 75 और 76 में इरशाद फरमाता है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ऐ मोमिनो तुम्हें क्या हुआ कि तुम राह खुदा में जिहाद नहीं करते। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। फरमाया हालांकि कुछ मर्द, कुछ औरतें, यानी मर्द कमजोर औरतें और छोटे बच्चे, वो दिन रात ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें इस जालिम बस्ती से निकाल दे, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। बूढ़े दुआएं कर रहे हैं, औरतें दुआएं कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं, बेबस अवाम दुआएं कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं अल्लाह हमें इस जालिम बस्ती से निकाल, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिया, अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार बना। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मदद और नुसरत करने वाला बना। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जिहाद तो क़यामत तक जारी रहना है। कुफर और इस्लाम की जंग, बोलिए भाई, ये तो हमेशा होती रहेगी। कभी भी कुफर ये मुसलमानों पे राजी नहीं हो सकता जब तक वो ये वलन तरदान कर यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। कुफर तो चाहते यही है कि एक भी मुसलमान रहे, सारे काफिर हो जाएं। और इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? कि कुफर के सारे मनसूबे का और निजाम का इनकार करना। अकेली इबादत नहीं है इस्लाम कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात कर लिया, बस ये इस्लाम है? नहीं। आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे मक्का वाले, उन्होंने कहा आप नमाजें पढ़ें, सजदे करें, जो करना है करें, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन आप हमारे निजाम को चैलेंज करते हैं, आप हमारे निजाम को चैलेंज करते हैं कि आपका निजाम ठीक नहीं है, तुम सूद लेते हो और तुम छोटों गरीबों का हक सलब करते हो और बड़े जो है वो हड़प कर जाते हैं, तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, आप तो हमारे निजाम पे हाथ डाल रहे हैं। हम अपने रसूम और रिवाज नहीं छोड़ेंगे, हाँ आप इबादत करें, लेकिन हमारे निजाम को कुछ न कहें। आप इस तरह करें, हाँ एक साल हम आपके रब की इबादत करेंगे, अगले साल आप हमारे बुतों की इबादत कीजिएगा। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करोगे, जिसकी तुम करते हो मैं मुस्तफा कभी नहीं करूंगा।
पूरा अहले मक्का एक तरफ है, अबू जाहल, अबू लहब, उतबा, जिनको अपनी ताकतों और अपनी इमारत के ऊपर मान था। हुजूर ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा निजाम है, मेरे लिए मेरा निजाम है, मैं निजाम इलाही का पाबंद हूं। एक सहाबी आ गए ना नबी पाक अलैहि सलाम के बाद, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दें कि मुझे आपके बाद फिर किसी से पूछना ना पड़े, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। हुजूर ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह फस्तकीम, कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पे डट जा। मैंने किसको माना? जोर से बोलिए, किसको माना? मेरी तकदीर किसके हाथ में है? वो अच्छी है या बुरी है? जो उसने लिखी है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिही व शर्रिही, मैं हर अच्छी तकदीर पर भी ईमान लाया जो मेरे मालिक ने मेरे लिए लिखी, और मैं हर बुरी पर भी ईमान लाया जो मेरे मालिक ने मेरे लिए मुकद्दर कर दी। उसने जाना मेरे लिए लिख दिया कि मैं थोड़ा ही खाऊं, थोड़ा ही पहनूं, थोड़ा ही चलो, मैं इस पे भी राजी हूं। मौला अली शेर खुदा क्या कहते हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा, फरमाया कि किस रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लनल इल्मो वलिल जोहाल मालो, हम अपने मालिक की तकसीम पे राजी हैं, हमें उसने इल्म दिया, जाहिलों को माल दिया। फिर आगे फरमाते हैं जाहिल माल लेके खुश हो गए, हम इल्म लेके खुश हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं माल कि वो खुद हिफाजत करते हैं, दिन रात उन्हें फिक्रें होती है, और इल्म हमारी हिफाजत करता है, इल्म हमारी हिफाजत करता है। किसी ने कहा ना मौला अली शेर खुदा से हालात बड़े खराब हो गए, कोई बॉडीगार्ड रखे, पर मैं बॉडीगार्ड है हमारे फरिश्ते मुकर्रर अल्लाह ने कर दिए, जब आखिरी वक्त आएगा उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मौत ही हमारा पहरेदार है, मौत ही हमारी जो है वो सिपर है, मौत ही हमारी ढाल है, मौत से किसी को फरार नहीं है। हाँ दुआ करें अल्लाह जब मौत आए तो लब पे कलिमा जारी हो, मौत आए तो सजदे पे आए, मौत आए तो बावुजू आए, मौत आए तो तिलावत कुरान पे आए, मौत आए तो नेकी के कामों में आए, बुराई के कामों में मौत ना आए। ये दुआ करनी चाहिए, मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए अल्लाह मुझे मार दे, नहीं, बेसब्री नहीं करनी। कभी कोई मौका होता है लम्हा कि जब बंदा मरने की दुआ करता है, वो अलग चैप्टर है कि जब वो दुश्मन के इलाके में गिरा हो, आसपास कोई भी जनाबे वाला हमदर्द हो, नसीर ना हो, मददगार ना हो, और उस वक्त उसके पास कुछ जंगी राज भी हैं, और वो समझता है कि अगर मुझ पे दुश्मन हावी हो गए और मुझसे वो मार मार के जंगी राज जो है गुलवा लेंगे, उस वक्त फिर इस्लाम इजाजत देता है कि तू मरने की दुआ कर, मरने की दुआ कर। हर एक के लिए मरने की दुआ नहीं है, वो कुछ कुछ मकामात हैं या ऐसे हैं कि जब वो बंदा बोल उठता है अल्लाह तेरे दुनिया से दिल भर गया है, अब मुझे अपने पास बुला ले, वरना मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया मोमिन की जो जिंदगी है ना ये बड़ी नेमत है, जितनी लंबी गुजार सकता है गुजारे, क्यों, जितना लंबी गुजारेगा नेकियां भी तो ज्यादा ही करेगा ना, नमाजें भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, इबादत भी करेगा। अच्छा अब क़यामत तक जिहाद तो बाकी रहना है, खैर और शर की जंग होती रहेगी। आदम और इब्लीस की जंग शुरू हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की जंग हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मद्दे मुकाबिल फिरौन की जंग हुई, जंग रहेगी, क़यामत तक जंग रहेगी। हुसैनियत एक तरफ रहेगी, यजीदियत एक तरफ रहेगी, मजलूम एक तरफ रहेंगे, जालिम एक तरफ रहेंगे, हक वाले एक तरफ होंगे, बातिल वाले एक तरफ होंगे। लेकिन फरमाया सुनो लड़ाई तो रहेगी क़यामत तक, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन जो मोमिन होते हैं वो जब भी लड़ते हैं अल्लाह की रजा के लिए लड़ते हैं, वो अल्लाह के रास्ते पे लड़ते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ लड़ना अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक है या अपनी गरज है। मोमिन किसके लिए लड़ते हैं? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, और काफिर लड़ते हैं शैतान के रास्ते के लिए। ये मुल्क में पेट्रोल निकल आया, पेट्रोल ले लो, इधर ये निकल आया, सोना निकल आया, सोना के, इनकी गरज दुनिया दुनिया दुनिया, और बंदा मोमिन की गरज मौला मौला मौला। गरज नतीजा बदल गया ना, नीयत बदल गई, तो आगे क्या फरमाया, फ़क़ातिलू औलिया शैतान, ईमान वालों शैतान के दोस्तों से, शैतान के औलिया से। तो अमेरिका क्या है, औलिया रहमान है कि औलिया शैतान है? औलिया शैतान से लड़ो, इन्ना कैद शैतान कान दईफा, और शैतान जितना मर्जी वो रखता है असला, जितना मर्जी वो एटम बम बना ले, जहाज बना ले, जंगी बना ले, राफेल बना ले, जितना भी बना ले, ये बात याद रखना, इन्ना कैद शैतान कान दईफा, इनका सारा असला कमजोर है। जब एक मरतबा तुम खड़े तो हो जाओ, देखा नहीं है मई की जंग में, बस डटे ही है ना, राफेल गिरते चले गए। इन कैद शैतान काना ज़ईफा, शैतान के सारे मकरो फरेब क्या है, कमजोर है। बोले शैतान के सारे हथियार क्या है, कमजोर। और इसका नजारा अल्लाह ने पहली जंग बदर में भी करवाया। इधर 313 बेसरो सामान निकले, उधर एक 950 के करीब काफिर, हर एक के पास 2-2 तलवारें और कई घोड़े, ऊंट,
बड़े करो फर से अबू जाल आया था, मैदान बदर में उतरा। इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवेशों का काफिला लेकर निकले, जिसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, नौखेज बच्चे भी हैं, मुआज और मुअव्वज जैसे। अल्लाह अकबर। और इनके अहद करके निकले थे मदीना मुनव्वरा से कि जब हम हमारा पेचा पड़े सही अबू जाल से, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अल्लाह अकबर। ये भी निकले, कितने हैं? 313। अब ये 313 बेसरो सामान। तलवारें कितनी हैं? 6 थे इनके पास 2 घोड़े। शाहनामा इस्लाम के अंदर हफीज जलंधरी ने वो पूरा मैदान बदर का नक्शा अशआर में लिखा, उसमें से चंद मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो कहते हैं थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। लश्कर कितना है? 313 का। तलवारें कितनी है? 8। घोड़े कितने हैं? 2। और जंगी लिबास कितने हैं? 6। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। बदलने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। हुजूर ने फरमाया था फतह हो जाएगी। फतह 2 लश्करों में से एक लश्कर हमें जरूर मिलेगा, या अबू सुफियान का तजाकी लश्कर, या फिर अबू जाल वाला जो है ना ये असले वाला लश्कर। तो अल्लाह तो चाहता था कि असले वाले लश्कर से लड़ा जाए। माल तो फिर भी हाथ आ ही जाएगा। माल क्या हाथ आ जाएगा? माल वाले भी इस्लाम के पास आ जाएंगे। ये जो असले के साथ करो फख्र गरूर से निकला है, इसका गरूर तोड़ना चाहिए। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वो निकले। अबू जाल, उतबा और शैबा, बड़े बड़े कुफार जिन्होंने हमेशा 13 साल तक रसूल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूल पाक को सताया, और आके करीम अलैहिस्सलाम पर और आपके गुलामों पर तरह तरह से अपनी तरफ से उन्होंने बड़े हीले और बहाने करके सताया, तंग किया, यहां तक कि रसूल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शरारतों के बायस मक्का छोड़ के मदीना तैयबा आना पड़ा। आज वो सारे बदर के मकाम पे उसने एक जसूस को भेजा, जाके पता करो ये कितने हैं, इनके पास असला कितना है, साजो सामान कितना है। वो आया, उसने जाके इस तरह गिना, टीले पे बैठ के वो देखता रहा। वो वापस आया, उसने कहा 300 से कुछ ज्यादा लगते हैं, बस न तलवारें हैं न ढाले हैं, कोई कुछ नहीं है, और रोजे भी रखे हुए हैं। रोजे भी 17 रमजान मुबारक, रोजे भी कईयों ने रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो कहने लगा लड़ने की जरूरत है कोई नहीं, रस्सियां इकट्ठी करो, हम इन्हें बांध के मक्का ले जाएंगे। जो उस लगीन का जुमला था, उस रिपोर्ट देने वाले ने कहा नहीं अबू जाल यहीं तू मार खा गया है। मैंने देखे हैं 313 पत्थर भी बांधे हुए हैं, उन्होंने पेट पे भरोसे भी रखे हुए हैं, तलवारें उनके पास नहीं है, पर मैंने उनकी आंखों पे मौत के शरारे देखे, मौत के शरारे देखे। उनमें से कोई नहीं मरेगा जब तक 5-10 का वो गाठा ना उतार दे। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जब आके करीम अलैहिस्सलाम ने रास्ते में पूछा ना मदीना मुनव्वरा से बदर के मकाम पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जगह देख कर आया हूं, और जहां फरिश्ते उतरे हैं वो पहाड़ भी देख कर आया हूं। जबलुल मलाइका, वो रेत का पहाड़ है, रेतला पहाड़ है, आप रेत यूं उठा सकते हैं, और थोड़ी सी मैं रेत ले भी आया हूं। तो ये बाई से तबर्रुक है कि चले हमारे घर में भी कुछ ना कुछ हिस्सा उस अरब की जिंदगी अपना मिट्टी का होना चाहिए। अल्लाह 10 देश अरब दी वाए नहीं, साढ़े हजरत क्यों चेर लाए। वो कैसे पहाड़ थे, वो कैसे दरख्त थे, वो कैसी जगह थी जिन्होंने महबूब का नजारा किया, महबूब को देखा, जिनके कदम, जिन्होंने हुजूर के कदमों के बोसे लिए, हुजूर के नालैन के बोसे लिए, वहां हवाएं फजाएं हुजूर को बोसा लेती रही। बहरहाल वो जब आके करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ जाते हुए रास्ते में पूछा, बताओ ऐ मेरे मुजाहिदों तुम्हारी क्या राय है। अबू सुफियान का तो लश्कर निकल गया, रह गया अबू जाल का जो 950 के करीब जो है मुकाम बदर पे उतरा। क्या राय है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, हजरत उमर फारूक खड़े हुए, हुजूर मक्का में भी हम आपके साथ, मदीना में भी आपके साथ, हमने आपकी खातिर माल जान औलादें सब कुछ छोड़ दिया, हजूर जो आपका इरशाद है हम आपके साथ। हजूर ने फिर फरमाया, मुजाहिदों बताओ तुम्हारी क्या राय है। फिर खड़े हुए, आका जो आपकी राय हमारी राय है। इतने में अंसार खड़े हुए, साद बिन अबादा खड़े हुए और हजरत मिकदाद खड़े हुए। इन्होंने खड़े होकर कहा, लगता है कि रूह सुखन हमारी तरफ है हुजूर। कहा क्योंकि मक्कियों ने तो इम्तिहान दे लिए, अब इम्तिहान मदीने वालों का है। अब इम्तिहान पहला किनका है? मदीने वालों का है कि ये क्या करते हैं। अर्ज किया जब मिकदार ने वल्लाह मा नकुलु लका कमा काला बनु इस्राईल अली मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। आका खुदा की कसम हम हरगिज़ आपसे बनी इस्राइल की तरह नहीं कहेंगे कि जिन्हें बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ मूसा तू जा, तेरा खुदा जाए, जाके जंग करो, जब इलाका फतह हो जाए तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे, हम तो यहां बैठे हैं। आका हम बनी इस्राइल की तरह नहीं है।
हम बनी इसराइल की तरह नहीं है। वलाकिन इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना माकुमा मुक्तदून। आका आपको हम यही कहेंगे, आप आगे हमारी क़यादत करें, हम आपके साथ पीछे पीछे मक्तल गाहों तक जा पहुंचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम आपके पीछे पीछे मक्तल गाहों तक जा पहुंचेंगे। फामदे या रसूल अल्लाह, साहब माज खड़े हो गए। आका फामदे या रसूल अल्लाह मा अरता व नहनु फवल्लदी बासक बिल हक लौ इस्तारता बिनल बहरा फखुदता का खुदना माका मा तखल्लफ मिन्ना रजुलन अहदन। अर्ज किया आका, जो आपके दिल अक़दस पे बात आ गई कर गुजरी है, उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अगर आप हमें हुक्म देंगे ना समंदर पे भी छलांग लगा दे, हम सारे समंदरों पे भी छलांग लगा देंगे। हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं होकर लड़ेंगे आका। और फिर लड़े, कैसे लड़े? नहरी दूना नहरे का, वजही दूना वजह का, नफ्सी दूना नफ्से का, वजही दूना वजह का, अली का सलाम गैर मवद्दो। साहबा लड़ते थे, वो भी उनके पास असले थे और लड़ते थे, और जुबानों पर क्या थे? आका हमारी जानें आपकी जान पे कुर्बान, हमारे चेहरे आपके चेहरे पे कुर्बान। आका हमारी गर्दनें आपकी गर्दन मुबारक पे कुर्बान, हमारी ज़ातें आपकी ज़ाते अक़दस पे कुर्बान। आका आप सलामत रहे, हमारी खैर ही खैर है, खैर ही खैर, हमारी खैर ही खैर है। आका आप सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक सहाबी गिरफ्तार हो गए ना, तो उस वक्त मक्के में पूरा मक्का इकट्ठा हुआ बदला लेने के लिए कि इस सहाबी को हम सूली पे लटका दें। जब सूली पे लटकाने लगे तो एक काफिर आगे आया, उसने कहा अब तो तेरे दिल में ये कभी ख्वाहिश तो जाती होगी ना, काश मैं घर में सही सलामत होता, बीवी बच्चों के पास और दरख्तों के हवाओं के नीचे होता, मेरी जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देता। उसी वक्त वो सहाबी तड़प उठा, सूली है सामने, और कहने लगे ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं, हम तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मदीना तैयबा में बैठे रसूलुल्लाह को कांटा भी चुभ जाए, रसूलुल्लाह को कांटा भी चुभ जाए, हम तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते। ये थे, हर चीज उन्होंने मार दी आका करीम अलैहिस्सलाम की खातिर। और इसी जंग के अंदर, इसी जंग में, जंग बदर में जो 70 कैदी हुए ना, उसमें एक आमिर भी कैद हुआ, गुस्ताख, अबू अबैदा बिन आमिर बिन जराह। अबू अबैदा सहाबी, बाप गुस्ताखे रसूल। और जब वो जंग बदर के कैदी 70 कैद कर लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ आए, तो अब सहाबा इकराम ने तो उनकी बाएं और मुश्कें बांधी गई थी, वो आमिर ने बक बक की, तो उसी वक्त अबू अबैदा ने तलवार उठाई, बाप की गर्दन उड़ा दी, और गर्दन कान से पकड़ के, सर पकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आए। हुजूर ने फरमाया ये क्या किया? हुजूर ये आपकी गुस्ताखी करता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब आप फैसला सुनाए मेरे हक में, क्या फैसला? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा सर। अब नाम तो क्या है? अबू अबैदा बिन आमिर बिन जर्राह, यही है, पर इस गुस्ताख बाप की तरफ सारी जिंदगी अबू अबैदा ने निस्बत ही नहीं की। अबू अबैदा बिन अल जर्राह, अबू अबैदा बिन अल जर्राह। जर्राह ठीक है, काफिर है, पहले मर गया आलम जहालियत पर, मुस्तफा का गुस्ताख तो नहीं था ना। अबू अबैदा बिन अल जर्राह। सलमान फारसी से किसी ने पूछा तेरा बाप कौन है? फरमाया इस्लाम। दादा कौन है? इस्लाम। परदादा कौन है? इस्लाम। हमारी सारी निस्बतें, मोहब्बतें, रिश्तेदारियां क्या है? इस्लाम है, बस। अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर हो जवां भी चैन हो जाए। इकबाल कहते हैं ये अखुवत है, ये नहीं है कि वहां कांटा नहीं, पूरे पूरे बंदे सभा हो रहे हैं, और तोरा बोरा और चिचनिया, बूसनिया, गजा, फलस्तीन, बर्मा, सारे ममालिक इस्लामिया के अंदर औरतों के कबाब बनाए जा रहे हैं, बच्चों के कबाब बनाए जा रहे हैं, और जनाब मर्दों को ज़बह किया जा रहा है, और हम चैन और सुकून के साथ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। ये अखुवत नहीं है। अखुवत ये है पूरी दुनिया का। हुजूर ने फरमाया तमाम मुसलमान आपस में एक दीवार की तरह, एक दीवार की तरह, जिस तरह की ईंट कमजोर होगी तो फिर आस्ता आस्ता सारी दीवार कमजोर हो जाएगी। दूसरी मिसाल दी हुजूर ने, फरमाया सब मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। तो जिस्म का एक हिस्से दर्द में मुब्तला हो तो पूरे जिस्म को बुखार हो जाता है, पूरा जिस्म महसूस करता है कि नहीं करता? तो इस तरह अगर महसूस हो तो फिर शुक्र करें कि हमारे अंदर इस्लाम की नमक बाकी है, अगर नहीं है तो फिर तौबा करें कि इस्लाम रुखसत तो नहीं हो गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद को फर्ज करार दिया, और जिहाद की फर्जियत अपनी जगह पे। और ये जो 313 लड़े, अब मकाम बदर में पहुंचे, लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होने से पहले तवज्जो फरमाइएगा, आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे में रख गए। सारी रात हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह अगर ये छोटा सा काफिला तेरे नबी की पूंजी 15 साल की ये जाया हो गई, कयामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा।
حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے, اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, توجہ کیجئے گا, اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے, نسائی کے اندر بھی ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے, اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے, مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے. حدیث کیا ہے, اور یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کے دل خود بخود سبحان اللہ پکاریں گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس, مقام بدر کے موقع پر رسول اللہ نے لوگوں کو بلایا, آؤ جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے نکلیں. فانطلقوا حتی نزلوا بدرا, وہ سارے صحابہ حضور کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ مقام بدر میں پہنچے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور لے کے نکلے مقام بدر کا, حضور چکر لگا رہے ہیں, ھذا مصرع فلاں, ھذا مصرع فلاں, ھذا مصرع فلاں, ھذا مصرع فلاں. یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں شیبہ گرے گا, یہاں امیہ گرے گا. 70 بندوں کے حضور نے نشان لگا دیے. جنگ ہونے سے ایک دن پہلے, جنگ ہونی ہے 17 کو, 16 کو نشانی, آج نشانیاں لگائی جا رہی تھی. راتوں رات ہو سکتا ہے کہ وہ لشکر بھاگ جائے, ہو سکتا ہے کوئی کمپرومائز کر لے, ہو سکتا ہے کوئی حالات بدل جائے, پر بدلے کیسے؟ زبان اقدس, اس زبان سے یہ جملے نکلے ہیں جس زبان کو رب کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے نہیں, یہ جب بھی بولتا ہے خدا اپنی مرضی سے بولتا ہے. یادہ الارض, حضور یوں ہاتھ رکھتے تھے, ایتھے ابو جہل ڈگے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں شیبہ گرے گا, نشانیاں لگاتے جا رہے تھے. کتنی نشانیاں لگائی؟ 70 حضور نے. اور حضرت انس بن مالک کہتے قال فما مات احدهم عن موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کل کا دن مارکا آیا ہر کافر وہیں گرا جہاں رسول اللہ نے نشانی لگا دی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے کہ میں نے فلاں کافر کو اس جگہ مارا جان ادھر نکلی ہے, مارا میں نے اس جگہ پہ ہے جان ادھر نکلی ہے. فاروق اعظم مسکرا کے کہنے لگے جان وہاں نکل کیسی سکتی تھی, نشانی جو رسول اللہ نے ادھر لگائی تھی, نشانی جو ادھر لگائی. اب حضور دعا کر رہے ہیں, اللہ یہ جمع تھوڑی سی تیرے محبوب کی پونجی ہے, اگر یہ ضائع ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہاں سے بڑی توجہ طلب, کیونکہ یہ مقام اب جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. سورہ انفال میں بھی بیان ہوا ہے, سورہ آل عمران میں بھی. تو اب یہ مقام محبوبیت بھی دیکھیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اب قرآن کہتا ہے تغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے محبوب جب آپ ہم سے دعائیں کر رہے تھے نا, ہم سے دعا کر رہے تھے, اللہ یہ تیرے محبوب کی تھوڑی سی پونجی ہے 15 سال کی, یہ ضائع ہوگی تو پھر تیرا نام لینے والا. جب محبوب تم دعا کر رہے تھے فاستجاب لکم, تو تیرا رب تیری دعائیں قبول کر رہا تھا. اچھا اسی وقت کیا اطلاع دی, انی ممدکم بألف من الملائکہ, اے محبوب اللہ آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد فرما دے گا. کتنوں سے؟ توجہ فرمانا. جب سرکار اٹھے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے تھے, آقا آپ اٹھ جائے, بڑی دعائیں ہوگی, اٹھے, حتیٰ کہ سرکار دعا کرتے کرتے چادر مبارک نیچے گئی. تو آقا کریم علیہ السلام اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے, فرمایا ابو بکر اب یہ حضور کا جملہ ہے. وہاں اللہ کا کیا جملہ ہے کہ اے محبوب تیرے رب نے سن لی, 1000 فرشتوں سے تیری مدد کرے گا. کتنوں سے؟ 1000 سے. حضور اٹھے نا تو فرمایا مومنو استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. او مومنو پریشان نہیں ہونا, 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. رب نے کتنے کہے, حضور نے کتنے کہے؟ مقام ناس دیکھیے, رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو 1000 کہا ہے آپ نے 3000 بڑھا دیے, 2000 اپنی طرف سے. نا اس کا بولنا, اس کا بولنا, اس کا بولنا, اس کا بولنا, جو یار کی مرضی ہو گئی. اب اللہ نے کیا کہا وعدہ 1000 کا, محبوب نے کیا کہا 3000 کا. فرمایا بلا محبوب کیوں نہیں, تو نے 3000 کہے کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا, اگر تیرے غلام صبر کرتے رہے جنگ کے دور میں اور تقوی اختیار کرے, مجھ سے ڈرے, کافر ٹوٹ پڑے ان کے اوپر, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, 1000 نہیں 3000 نہیں, پھر تیرا رب 5000 سے مدد کرے گا. نعرہ تکبیر, اس کو حل کریں بھائی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت دعا کتنے؟ 1000. اٹھے تو محبوب نے کیا فرمایا 3000, فرمایا رب نے کیا کہا 5000. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اچھا یہاں فرمایا تو جو مسومین 5000 فرشتہ نشان زدہ,
आपने घोड़े देखे निशान ज़दा? घोड़ों पे निशानियां लगाई जाती हैं, ये जिहाद के घोड़ों पर भी निशानियां लगती हैं, या मालिक जो है उन्हें अपने नस्ली घोड़ों पे निशानियां लगाते हैं। वो किस लिए होती है? ताकि आम घोड़ों से ये पहचाने जाए। रब ने फरमाया कौन फरिश्ते वो जितने भी हैं उनकी गिनती रब्बुल आलमीन जानता है। टोटल फरिश्तों की गिनती कौन जानता है? अल्लाह पाक जानता है वो कितने हैं। बस इतने हैं कि इमाम इब्ने जौजी और कुछ मुहद्दिसीन ने कहा इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नों की तादाद है और जिन्नों से भी 10 गुना ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। लेकिन ये भी उनका अपना तखमीना है। जबकि बंदा जब वुजू करता है तो एक कतरे से फरिश्ता पैदा हो रहा है, और जब अपना क्या है जबल रहमा अपना नहर रहमा चौथे आसमान पे एक नहर है, मलक फरिश्ता है रूहुल अमीन, वो गोता लगाता है, गोता लगा के जब अपने 600 परों को इस तरह फड़फड़ाता है तो जितने कतरे गिरते हैं हर कतरे से फरिश्ता पैदा होता है। और तादाद इतनी है 70,000 सुबह महबूब के पास आ रहे हैं, 70,000 शाम आ रहे हैं, और जो एक बार आ जाता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। अब यहां से चले और नहीं तो ये जो रियाजी जानते हैं 1447 हिजरी में 11 निकालें तो 1436 हिजरी, 1436 साल ज़रब 355, अब जरबे 70,000 1,40,000। अब ये मल्टीप्लाई करके मुझे दे दें, इंशाल्लाह अगले जुमे मैं आपको तादाद बता दूंगा अब तक कितने आ चुके हैं, अब तक कितने आ चुके। लेकिन उन सारे करोड़ों अरबों खरबों और लाख तादाद फरिश्तों में ये 5,000 निशान ज़दा है। कितने निशान ज़दा है? 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुजूर ने फरमाया जिब्रील जिस तरह मोमिनों में अल्लाह ने बदर वालों को मुकाम दिया, क्या फरिश्तों में भी ऐसा है? अर्ज किया का जो 5,000 उतरा है ना उनकी शान तक क़यामत तक कोई फरिश्ता पहुंच नहीं सकता। तो मुजाहिद की शान को कौन पहुंच सकता है? अल्लाह ने मुजाहिदों की कसमें उठाई। पूरे कुरान में नमाजी की कसम नहीं है, नमाजी बड़ी शान वाला है, रोजेदार बड़ी शान वाला है, लेकिन कसम नहीं उठाई। हज करना बड़ी शान है कि जिसने हज किया कोई गुनाह नहीं किया आ गया वापस, पर मैं वो इसी तरह हो गया जिस तरह अभी मां के पेट से वो पैदा हुआ, गुनाह माफ हो गया, बड़ी शान है। पर अल्लाह ने हाजी की कसम नहीं उठाई। कसम किसकी उठाई? फरमाया वल आदियाति दबहन फल मूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबह फसरना बिही नकन फबसतना बिही जमआ। फरमाया जब घोड़े दौड़ते हैं मैदान जंग में, उन घोड़ों के नीचे पांव से पांव की टापों से जो धूल उठती है, महबूब मुझे रब्बुल आलमीन को उस धूल की भी कसम है। वो धूल इतनी शान वाली है तो घोड़ा कितनी शान वाला होगा, और घोड़े का सवार मुजाहिद कितनी शान वाला होगा। रब ने उस कसम उठाई। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं मैदान जंग में लड़ूं, खुद तलवार पकड़ूं और दुश्मनों पे टूट पड़ूं, हत्ता उक्तल, यहां तक कि मैं शहीद हो जाऊं। सुम्मा ओया सुम्मा उक्तल, सुम्मा ओया सुम्मा उक्तल, सुम्मा ओया सुम्मा उक्तल, मैं शहीद हो जाऊं, रब मुझे फिर जिंदा करे, मैं फिर तलवार पकड़ के दुश्मनों से लड़ूं, खुदा के दुश्मनों से मुकातिला करूं, फिर शहीद हो जाऊं, खुदा मुझे फिर जिंदा करे, मैं फिर तलवार पकड़ के रब के दुश्मनों से लड़ूं। और हमें दुश्मनों से यारियां हैं, ट्रंप से यारियां हैं, नेतन्याहू से यारियां हैं, और हुजूर फरमाते हैं रब मुझे कहे तो मैं नेतन्याहू की गर्दन उड़ाऊं। तो बोलो ना अल्लाह, चुप कर गए भाई, वो उड़नी है। ये मदद अल्लाह ने पहले से ली हुई है अज़लों में, मिसाके अंबिया। फरमाया और नबियों की रूहो आओ, ये मेरा शान वाला महबूब है मुस्तफा, जब ये आ जाए क्या तुम इस पर ईमान लाओगे? लाओगे? लाएंगे। मदद करोगे? करेंगे। कैसे? सब नबियों ने तो वफात पा जानी थी, लेकिन अल्लाह ने इसका अमली नमूना हजरत ईसा इब्ने मरियम के रूप में करना था। हजरत ईसा जिंदा है, आएंगे, और सबसे पहले दज्जाल को कत्ल करने के बाद नेतन्याहू की सारी कौम को कत्ल करेंगे। केड़ी कौम है? बोले ना जोर से, यहूदी। एक भी यहूदी बाकी नहीं होगा, बल्कि हुजूर ने गैबी खबर देते हुए फरमाया कि वो अगर पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर भी बोलेगा मुजाहिद मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल कर। पत्थर भी उनका साथ छोड़ जाएंगे, दरख्त भी उनका साथ, और पूरी दुनिया के हर शजर हजर मुस्लिम का साथ देगा। तो नबी की सोबत का असर होगा ना। तो हुजूर का मिशन आके पूरा करेंगे कौन? हजरत ईसा इब्ने मरियम। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं लड़ूं, शहीद हो जाऊं, फिर खुदा जिंदा करे, मैं फिर आऊं, लड़ूं, शहीद हो जाऊं, फिर खुदा मुझे जिंदा करे। 10 बार हुजूर ने ये फरमाया। हुजूर ने फरमाया वो बंदा मुनाफिकत की मौत मरेगा जिसके दिल में जिहाद की तमन्ना ही नहीं है, जिसके दिल में जिहाद की तमन्ना नहीं, वो किस मौत में मरेगा? आज हम देख लें क्या है, अमन 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 अमन, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो। जब से जिहाद छोड़ दिया है ना, तब से मुसलमान पीछे जा रहे हैं।
اور ایک مرتبہ آپ نے صرف لک سیدھا کیا ہے یہ مئی میں پچھلے سال، تو پورا ٹرمپ تک سارے سیدھے ہو گئے لاتوں کے بھوت باتوں سے. حضور نے خود فرمایا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور میرے مومنوں کو یہ میٹھا رہے گا، کڑوا نہیں. کیا رہے گا؟ بولیے نا، میٹھا رہے گا. کس کس کو میٹھا پسند ہے؟ حلوہ کھانے والے تو ہاتھ کھڑا کریں نا. حلوون خودرن، یہ الفاظ ہے حضور کے. حلوون میٹھا رہے گا، سرسبز رہے گا ہمیشہ اور قیامت تک جاری رہے گا. پھر حضور کا روح سخن ہو گیا مشرق کی جانب. حضور نے فرمایا مشرق سے کچھ بدبخت پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے لا رباتا ولا جہادا، لا رباتا ولا جہادا. یہ نہیں جہاد نہیں، بس امن 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 امن. اور یہ بولی پاکستان میں بولی جا رہی ہے، یہ مشرقی علاقوں میں بولی جا رہی ہے. امن امن جی، پیس 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 پیس. اور جا کے وہ ان کے جناب والا ٹھوٹے آگے کر دیتے ہیں، کشکول آگے کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے آگے. تجھے شان کیا اللہ نے دی ہے اور تو گن کے آگے چک رہا ہے، فقیر اور سائل بن رہا ہے. فرمایا مشرق سے کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، فرمایا سنو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، جلیں گے آگ. اور مرزا قادیانی، یہ بھی حضور کی غیبی خبر ہے. اور مرزا قادیانی بھی ادھر ہی پیدا ہوا ہے، مدینہ سے مشرق کی طرف ہی ہے. اور مرزائی سارے کہتے ہیں لا جہاد ولا رباتا، کوئی جہاد نہیں، کوئی رباط نہیں، یعنی جنگی اسلحے نہیں اکٹھے کرنے چاہیے. یہ حضور کی نگاہ تھی جو دیکھ رہی تھی، یہ بدبخت ادھر ہی پیدا ہو گئے. لیکن حضور نے پھر مشرق کی طرف دیکھا تو پھر مشرق سے حضور کو خوشبو بھی تو آ رہی تھی. وہ خوشبو میں مجاہدوں کی بھی تھی کہ مجاہد بھی ادھر سے ہی پیدا ہوں گے. ہم سارے کیا بیٹھے ہیں؟ جہاد کے لیے ہیں تیار؟ اگر آج پاکستان کے چیف آف آرمی اعلان کر دیں تو ٹھیک ہے کہ پیچھے ہٹیں گے؟ حضور نے فرمایا شہید قیامت کے دن 70 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں جائے گا. کتنوں کی؟ اور آپ کو بتاؤں، بستر پہ موت جو آتی ہے مرنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 1000 تلواریں چل گئی. کتنی؟ بستر کی موت بڑی خطرناک موت ہے. اور شہید کی موت کو حضور نے بیان کیا اس طرح جیسے چونٹی نے کاٹا، اس طرح آسانی سے جان نکل جاتی. اب اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا، بس تھوڑا سا مقام رہ گیا، توجہ کیجیے گا. اللہ رب العالمین نے کتنے فرشتے اتارے؟ 5000. اب بڑی توجہ، جب فرشتوں کو اترا دیکھا نا خبیث ابلیس نے، وہ بھی ساتھ تھا کافروں کے، جب اس نے اترے دیکھا ادھر اپنا کیا کہتے ہیں فرشتوں کو، تو وہ بھاگ گیا. شیطان کیا ہوا؟ بھاگ گیا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَكُمْ. شیطان انسانی روپ میں آیا ان کے پاس ایک قبیلے کا سردار بن کے، ایک قبیلے کا سردار. اس کا ٹینشن نہیں لانی، میں تمہارے نال ہاں، پورا قبیلہ تمہارے نال ہے. ایسا مزین کیا اس نے، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج کے دن تم پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا. فلما تراءت الفئتین نقص علی عاقبیہ. جب دونوں لشکر یوں ٹکرائے نا تو اس کی نظر پئی فرشتوں پر، نقص علی عاقبیہ، کنڈ کر کے دوڑ گیا. جب دوڑا وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. کہنے لگا میں تم میں سے نہیں ہوں، میں بری ہوں، بھاگ کے کہہ رہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کب اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ فرشتے دیکھ کے تو پتہ لگا جبریل میکائیل جب نظر آ گئے تو یہ بھی تبلیغی بن جاتا ہے. واللہ شدید العقاب، اللہ بڑے شدید پکڑ والا ہے. اب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جب وہ مار رہے تھے نا، اچھا ادھر مدینہ میں منافق اور یہودی خوشیاں منا رہے تھے، بس یا اسلام بدر میں کڑاکا نکل جائے گا. حضرت زید بن حارثہ صحابی رسول آئے نا فتح کی خوشخبری لے کے مدینہ منورہ، اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ آئے، رسول اللہ کے گھوڑے پہ آئے اور کہا مدینے والوں مبارک ہو، اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی. مقام بدر میں ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، 70 مارے گئے، 70 حملے قیدی بنا لے، اور رسول اللہ علیہ کریم تشریف لانے والے ہیں. اس وقت یہودی چک مارتے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہو چک مارو. اور جب فرشتوں کو بھیجا نا اللہ نے، چلے یہ بھی مقام پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ فرمائے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. 5000 فرشتہ رب نے بھیجا، جاؤ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل جاؤ، 5000 فرشتے نشان زدہ، تم مقام بدر میں اترو، تم اکیلے نہیں، میں رب العالمین بھی تمہارے ساتھ ہوں.
फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी इन्नी माकुम मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी मुसलमान ये तारीख उठा के देखे, जब भी मुस्लिम ने तहिया किया है जिहाद फी सबीलिल्लाह का, मदद आई के आई। आप तारीख उठाए खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 मुजाहिदों को लेके, उन्होंने समझा ये 60 बंदे जो आ रहे हैं लगता कोई कंप्रोमाइज करने आ रहे हैं। आप वो उन्होंने रास्ता दिया, जब बात उस सिपा सलार के पास पहुंचे, ईसाई जर्नैल के पास, तो आपने जो लफ्ज बोला, फरमाइए मत समझना हमको कंप्रोमाइज करने आए हैं, हम तुमसे लड़ने आए हैं। और आना खालिद इब्न वलीद, और वो यूं दौड़े जिस तरह शेर को देख के बकरियां दौड़ती हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद, अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद इब्न वलीद मुल्क शाम में जब लड़ाई कर रहे थे, तो वहां के एक सिपा सलार ने यरमूक के मैदान में उसने कहा कि हमने सुना है अरबियों को भूख निकाल के जो है वो मुल्क शाम ले आई, और भूखे बेड़े चराने वाले, बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, इतना सरो सामान नहीं है, और इधर बागात है मुल्क शाम के अंदर, नहरें हैं, लगता है तुम्हें भूख यहां निकाल के ले आई है, चले हम आपको जो है वो दिरमो दिनार और कुछ सौगात वगैरह देंगे, आप वापस चले जाए। वो किसको मशवरा दे रहा था? हज़रत खालिद इब्ने वलीद को, शबाज इब्ने शरीफ को नहीं। तो समझ आई है कि नहीं? हाँ जी, खालिद इब्ने वलीद को जब वो लेटर पहुंचाना था खालिद इब्ने वलीद के पास, आपने उसकी बैक साइड पे लिखा, खालिद इब्ने वलीद ने खत इधर था, बैक साइड पे लिखा, हाँ हमें भूख मुल्क अरब से निकाल लाई, हम वहां भूखे थे, मुल्क शाम में इसलिए आए हैं, हमें पता चला शामियों का खून बड़ा मजेदार है, हम तुम्हारा खून पीने आए हैं, हम तुम्हारा। और जब मकाम हीरा पे किसी ने कहा जिस नबी की खातिर ना तुम दिन देखते हो ना रात देखते हो, मकाम इधर लड़ाई किले पे किले फतह के, क्या है उसकी शान, क्या है? सिर्फ लना रसूल अल्लाह, अल्लाह के उस रसूल की सिफ्त बयान करे। खालिद इब्ने वलीद मुफस्सिर नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, मुज्तहिद नहीं थे, आपने एक ही जुमला कहा, हमें और कुछ नहीं पता, इतना पता है वो रब की शान बन के आया। इस सूरत में जान आंखा के जाने सच आंखा के रब दी में, जिस शान तू शाना सब बन जा। सुबहान अल्लाह, मा अजमल का, मा आसन का, मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरे गुस्ताख अखियां किथे जा लगे। ये खालिद इब्ने वलीद का अकीदा है, वो अल्लाह की क्या बन के आया? शान बन के आया। तो आपने कहा वो तुम्हारा खून बड़ा मजेदार है, कोई बात नहीं, हम खून पीने आए।